بغداد کی شام اپنے جوبن پر تھی۔ گلیوں میں زندگی کا شور تھا، بازاروں میں سودے بازی کی آوازیں، دستکاروں کے ہتھوڑے کی دھمک، اور بچے جو گلیوں میں قہقہے لگا رہے تھے۔ اس ہنگامے کے بیچ ایک پراسرار مسافر نظر آتا تھا۔ یہ مسافر ایک اندھا شخص تھا جو ہاتھ میں ایک چھڑی تھامے دھیرے دھیرے چلتا ہوا گلیوں سے گزرتا۔ وہ ہر گلی کے نکڑ پر رکتا، لوگوں سے چند لمحے بات کرتا اور پھر آگے بڑھ جاتا۔ اندھے راہگیر کی عادت تھی کہ وہ کسی سے کچھ مانگتا نہیں تھا، مگر اس کی باتوں میں ایک کشش ہوتی تھی۔ وہ لوگوں کو ان کے دکھ، پریشانیوں اور خوابوں کے بارے میں باتیں کرتا، گویا وہ ان کی روحوں کو دیکھ سکتا ہو۔ کچھ لوگوں نے اسے درویش سمجھا، کچھ نے گداگر اور کچھ نے اسے پاگل گردانا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا یوسف، جو بازار میں چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا، اس اندھے شخص کے پاس آیا۔ یوسف نے پوچھا، بابا، تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ تم دیکھ نہیں سکتے، پھر بھی تمہاری باتیں سیدھی دل کو کیوں لگتی ہیں؟ اندھے راہگیر نے مسکرا کر کہا، بیٹا، روشنی صرف آنکھوں سے نہیں، دل سے بھی دیکھی جاتی ہے۔ جو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ہمیشہ سچ کو نہیں دیکھ پاتے، مگر جو دل سے دیکھتے ہیں ان کے لیے دنیا ایک کھلی کتاب ہے۔ یوسف کو اس کا جواب سمجھ نہیں آیا، مگر اس کے الفاظ اس کے دل میں نقش ہو گئے۔ یوسف نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پراسرار راہگیر کے ساتھ وقت گزارے گا اور اس کے رازوں کو جانے گا۔ اندھا راہگیر گلی کے کنارے بیٹھا رہا اور یوسف نے اسے چپ کے دیکھنا شروع کیا۔ وہ ہر آنے والے شخص سے ایک ہی سوال کرتا، تم اپنی زندگی کی روشنی کہاں ڈھونڈتے ہو؟ مگر کوئی بھی اس کے سوال کا ٹھیک جواب نہ دے سکا۔ کچھ نے دولت کہا، کچھ نے خوشی، مگر اندھے شخص نے سب کو مسکرا کر رخصت کر دیا۔ یوسف کے دل میں ایک بے چینی جاگ اٹھی۔ یہ اندھا شخص کون تھا؟ کیا واقعی یہ سچ جانتا تھا یا یہ سب محض اتفاق تھا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ روشنی کیا تھی جس کی وہ بات کر رہا تھا؟ یوسف نے اندھے راہگیر کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ ہر شام جب بازار کا شور کم ہونے لگتا، وہ اس پراسرار شخص کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں غور سے سنتا۔ ایک رات یوسف نے پوچھا، بابا، اب کون ہے؟ اور یہ روشنی کیا ہے جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں؟ اندھے راہگیر نے گہری سانس لی اور بولا، بیٹا، میں ایک عام انسان ہوں، لیکن میری اندھیری دنیا نے مجھے وہ سکھایا جو روشنی میں لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ روشنی کوئی چیز نہیں، یہ ایک احساس ہے جو اندر سے آتا ہے، اور جب تم اسے پا لیتے ہو تو دنیا کا ہر دکھ مٹ جاتا ہے۔ یوسف نے حیرت سے پوچھا، لیکن یہ روشنی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اندھے شخص نے مسکرا کر کہا، یہ ہر کسی کے لیے الگ ہے۔ کسی کو یہ سخاوت میں ملتی ہے، کسی کو دعا میں، اور کسی کو محبت میں۔ تمہیں بھی اپنی روشنی تلاش کرنی ہوگی۔ اسی دوران بازار کے کچھ لوگ یوسف کے پاس آئے اور کہا، تم کیوں اس پاگل کے ساتھ وقت ضائع کر رہے ہو؟ یہ تو خود اپنی زندگی کے مسائل حل نہیں کر سکتا، تمہیں کیا سکھائے گا؟ یوسف نے جواب دیا، شاید وہ دیکھ نہیں سکتا، مگر اس کا دل بہت کچھ جانتا ہے۔ میں اس سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ چند دن گزرے اور یوسف کو اندھے شخص کے الفاظ کی سچائی نظر آنے لگی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے اس شخص کی باتیں لوگوں کو سکون دیتی ہیں، کیسے وہ اپنے الفاظ سے دلوں کے زخم بھر دیتا ہے۔ مگر یوسف کے دل میں ابھی بھی سوال تھا، یہ روشنی کیا ہے اور اسے کیسے پایا جا سکتا ہے؟ ایک دن یوسف نے اندھے راہگیر کو اپنے ساتھ شہر کے کنارے پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں ایک قدیم مسجد تھی، جہاں شہر کے بزرگوں کا ماننا تھا کہ اگر کوئی خالص نیت سے دعا کرے تو اس کے دل کا ہر راز کھل سکتا ہے۔ یوسف نے سوچا کہ شاید وہاں جا کر اسے اپنی روشنی کا جواب مل جائے۔ اندھا راہگیر خاموشی سے یوسف کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ راستے میں یوسف نے محسوس کیا کہ یہ سفر صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ یوسف اور اندھے راہگیر نے دھوپ ڈھلنے کے بعد شہر کے کنارے کی طرف سفر شروع کیا۔ گلیاں اب سنسان ہو چکی تھیں
और बगदाद की पुरानी इमारतें तारीकी में डूबी हुई थीं। चांद की मध्यम रोशनी में दोनों के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। यूसुफ का दिल तेजी से धड़क रहा था। इसे महसूस हो रहा था जैसे वो किसी बड़े राज के करीब पहुंच रहा हो। अंधा राहगीर अपनी छड़ी के सहारे खामोशी से चल रहा था, मगर उसकी पेशानी पर सुकून था। यूसुफ के लिए यह सुकून हैरान कुन था। उसने हिम्मत जमा की और पूछा, बाबा, क्या आपको कभी इस बात का दुख नहीं हुआ कि आप देख नहीं सकते? आपके लिए दुनिया तारीक है, मगर फिर भी आप इतने मुतमईन हैं। अंधे ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा, आंखों से देखना सब कुछ नहीं होता। रोशनी का असल मफहूम दिल की आंखों से देखने में है। अगर दिल साफ हो तो इंसान हर हकीकत को समझ सकता है, चाहे इसकी जाहिरी दुनिया तारीक ही क्यों ना हो। यूसुफ ने सर हिलाया, मगर उसके सवालात अभी खत्म नहीं हुए थे। मगर आपने ये सुकून और रोशनी कैसे पाई? क्या आपको किसी ने सिखाया? अंधे ने जवाब दिया, ये जिंदगी के तजुर्बे का नतीजा है। दुख, तकलीफ और सब्र ने मुझे वो सिखाया जो किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता। तुम भी अपनी रोशनी तलाश कर सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें अपने दिल की तारीकी से लड़ना होगा। शहर के किनारे पर पहुंचकर एक कदीम मस्जिद सामने आई। मस्जिद की मेहराबें चांदनी में जगमगा रही थीं और यूसुफ को लगा कि यह जगह वाकई खास है। वो अंधे राहगीर को लेकर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। वहां का सुकून यूसुफ को अजीब सा सुकून दे रहा था। यूसुफ ने अंधे शख्स से कहा, बाबा, मैं यहां दुआ करना चाहता हूं। शायद अल्लाह मुझे मेरी रोशनी का रास्ता दिखा दे। अंधे ने सर हिलाया और कहा, यही सबसे पहला कदम है। दिल की गहराई से दुआ करो और याद रखो कि रोशनी हासिल करने के लिए तुम्हें अपने दिल के अंधेरे को खत्म करना होगा। यूसुफ ने वजू किया और मस्जिद के एक कोने में जाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और खालिस दिल से दुआ मांगनी शुरू की। इसका दिल बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज नहीं निकल रहे थे। वो अपनी मायूसी, अपनी उम्मीदें, सब कुछ अल्लाह के सामने पेश कर रहा था। अंधा राहगीर मस्जिद के दरवाजे पर बैठा हुआ यूसुफ की दुआ का इंतजार कर रहा था। इसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो किसी बड़े राज को जानने वाले की होती है। यूसुफ की दुआ के दौरान मस्जिद का माहौल अजीब सा हो गया। एक लतीफ हुआ चलने लगी और यूसुफ को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसके दिल को तसल्ली दे रहा हो। जब यूसुफ ने दुआ खत्म की तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो अंधे राहगीर के पास आया और कहा, बाबा, मैंने अल्लाह से अपनी रोशनी की दुआ की है, मगर मुझे नहीं मालूम कि मुझे ये कब मिलेगी। अंधे ने मुस्कुरा कर कहा, यूसुफ, तुमने पहला कदम उठा लिया है। रोशनी कोई चीज नहीं जो फौरन हासिल हो जाए। ये एक सफर है और तुम्हें सब्र और इस्तिकामत के साथ इस सफर पर चलना होगा। यूसुफ के दिल में एक नई उम्मीद जागी। वो समझ गया कि रोशनी की तलाश आसान नहीं, मगर यह मुमकिन है। अंधे राहगीर के अल्फाज ने इसे एक नया रास्ता दिखाया और वो इस पर चलने के लिए तैयार था। यूसुफ और अंधे राहगीर ने मस्जिद से निकलने के बाद इस पुरानी गली का रुख किया जहां अंधे ने एक खास जगह के बारे में बताया था। गलियां तंग और पुरानी थीं, जिनके किनारे मिट्टी के बने घर थे। इन घरों के बाहर लगे पुराने चिराग मध्यम रोशनी दे रहे थे और हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। अंधे राहगीर ने अपनी छड़ी से रास्ता टटोलते हुए कहा, यूसुफ, अब हम इस जगह के करीब हैं जहां तुम्हें अपनी रोशनी का इशारा मिलेगा, मगर यह जगह हर किसी के लिए नहीं है। यहां पहुंचने के बाद तुम्हें अपनी नीयत को परखना होगा। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, बाबा, क्या मतलब? क्या ये कोई इम्तिहान है? अंधे ने मुस्कुराते हुए कहा, हर बड़ी रोशनी तक पहुंचने के लिए इम्तिहान देना पड़ता है। अगर तुम्हारा दिल साफ होगा और नियत खालिस, तो तुम ये इम्तिहान पास कर लोगे। वो गिल्ली के इख्तिताम पर एक कदीम दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा पुराना और बोसीदा था, मगर इस पर नक्शो निगार से जाहिर हो रहा था कि यह किसी खास मकाम का दरवाजा है। यूसुफ ने दरवाजे को धक्का दिया तो वो धीरे से खुल गया। अंदर एक छोटा सा सहन था, जहां चांदनी मध्यम रोशनी बखेर रही थी।
सहन के बीचों बीच एक पत्थर की कुर्सी थी और उसके आसपास पानी के छोटे छोटे चश्मे बह रहे थे। अंधे ने कहा, यह जगह एक राज रखती है। ये कुर्सी किसी आम शख्स के लिए नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में कोई भी लालच या गलत इरादा है तो यह जगह तुम्हें कबूल नहीं करेगी। यूसुफ के दिल में खौफ और इश्तियाक दोनों थे। उसने कुर्सी की तरफ देखा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो कुर्सी के करीब पहुंचा, इसे महसूस हुआ कि माहौल बदल रहा है। हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी और यूसुफ के कदम भारी होने लगे। अंधे राहगीर ने कहा, यूसुफ, अगर तुम्हारे दिल में कोई शक या लालच है तो यह वक्त है इसे छोड़ने का, वरना यह जगह तुम्हें अपनी रोशनी के करीब नहीं ले जाएगी। यूसुफ ने अपने दिल पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। उसने अपने अंदर के तमाम खौफ, लालच और मायूसी को निकालने की कोशिश की। उसने खुद से कहा, मैं यहां किसी जाती फायदे के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ रोशनी और सुकून की तलाश में हूं और अल्लाह की रजा मेरा वाहिद मकसद है। जब इसने आंखें खोली तो हुआ कि सरसराहट रुक चुकी थी। वो कुर्सी के करीब गया और उस पर बैठ गया। अचानक कुर्सी के नीचे से एक नर्म रोशनी निकलने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे सहन में फैल गई। यूसुफ को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके दिल का बोझ हटा दिया हो। अंधे राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यूसुफ, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया है। ये रोशनी तुम्हें बता रही है कि तुम्हारा रास्ता सही है, मगर यह सिर्फ शुरुआत है। अब तुम्हें अपने अमल से यह साबित करना होगा कि तुम वाकई इस रोशनी के काबिल हो। यूसुफ ने कुर्सी से उठकर सर झुका लिया और कहा, बाबा, मैं वादा करता हूं कि अपनी रोशनी को कभी मांद नहीं होने दूंगा। आपने मेरी रहनुमाई की है और मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। अंधे राहगीर ने कहा, यह तुम्हारा सफर है यूसुफ। मैं तुम्हें यह रास्ता दिखा सकता हूं, मगर तुम्हें इस पर खुद चलना होगा। यूसुफ ने दिल में एक नया अज़्म पैदा किया और सहन से बाहर निकलकर वापस मस्जिद की तरफ रवाना हुआ, जहां इसका सफर शुरू हुआ था। अब वो जान चुका था कि रोशनी सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक तर्ज जिंदगी है, जिसे अपनाने के लिए सब्र, नियत और अमल की जरूरत है। यूसुफ सहन से निकलकर मस्जिद की जानिब जा रहा था, लेकिन अब इसका दिल सुकून के साथ एक अजीब सी बेचैनी का शिकार था। रोशनी की कुर्सी ने इसे अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। मस्जिद पहुंचकर इसने अंधे राहगीर को शुक्रिया कहना चाहा, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं था। यूसुफ ने इर्द गिर्द देखा, लेकिन वो फकीर कहीं नजर ना आया। यूसुफ ने मस्जिद में नमाज अदा की और दुआ मांगी, ए अल्लाह, मुझे उन राजों को समझने की तौफीक दे और मुझे सही रास्ते पर रख। नमाज के बाद इसे वही नर्म रोशनी मस्जिद के एक कोने में नजर आई। हैरत के मारे वो रोशनी की तरफ बढ़ा तो देखा कि वहां एक कदीम संदूक रखा हुआ था, जिस पर कुछ अजीब से नक्शो निगार थे। यूसुफ ने हिचकिचाते हुए संदूक को खोला। अंदर से एक पुरानी किताब निकली, जिसके सफ़हात पर चमकती हुई तहरीर लिखी हुई थी। किताब का उन्वान था, रोशनी के राज और कुर्बानी का इम्तिहान। यूसुफ ने किताब खोली और पढ़ने लगा। रोशनी को पाने के लिए लालच से दूर रहो और कुर्बानी देने का हौसला पैदा करो। सिर्फ वही दिल जो खालिस हो, रोशनी के असल राज को समझ सकता है। यूसुफ ने किताब के सफ़हात पलटना शुरू किए और हर सफ़े पर एक नया सबक लिखा हुआ था। वो ये सब कुछ पढ़ ही रहा था कि अचानक मस्जिद के दरवाजे पर एक फकीर आया, जो मदद के लिए पुकार रहा था। यूसुफ ने इसे खाने के लिए कुछ दिया, लेकिन फकीर ने कहा, मुझे खाने से ज्यादा तुम्हारा वक्त चाहिए। क्या तुम मेरी कहानी सुन सकते हो? यूसुफ हैरान हुआ, लेकिन उसने अपनी किताब बंद की और फकीर के करीब बैठ गया। फकीर ने कहा, मैं एक ताजिर था, लेकिन लालच और बेईमानी की वजह से सब कुछ खो बैठा। अब मैं अपनी गलतियों के बदले लोगों की खिदमत कर रहा हूं। ये बात सुनकर यूसुफ ने सोचा कि रोशनी के राज को समझने के लिए इसे भी अपने दिल से लालच और दुनियावी ख्वाहिशात को निकालना होगा। फकीर के जाने के बाद वो किताब के मजीद सफ़हात पढ़ने लगा, जिनमें कुर्बानी के हकीकी मानी बयान किए गए थे। अगले दिन
यूसुफ को मालूम हुआ कि इसके गांव के कुछ लोग एक बड़ी मुश्किल का शिकार हैं। एक करीबी दरिया में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई थी और गांव के मवेशी और फसलें खतरे में थीं। गांव के लोग खौफजदा थे और उन्हें कोई हल नजर नहीं आ रहा था। यूसुफ ने फैसला किया कि वो अपनी रोशनी के सबक को अमली जामा पहनाएगा। उसने गांव वालों की मदद करने का अज़्म किया। वो उनके साथ दरिया के किनारे गया और उनकी हिम्मत बंधाई। यूसुफ ने खुद अपने हाथों से मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया और गांव वालों के साथ मिलकर दरिया के किनारे एक मजबूत बंद बांधने की कोशिश की। काम करते हुए यूसुफ के हाथ जख्मी हो गए और उसकी थकन वाज़े थी, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी रोशनी थी जो उसे हार मानने नहीं दे रही थी। गांव वालों ने कहा, यूसुफ, तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी मदद की। तुम वाकई रोशनी के काबिल हो। ये अल्फाज सुनकर यूसुफ को महसूस हुआ कि कुर्बानी का मतलब सिर्फ अपना कुछ खोना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए वो करना है जिससे उन्हें फायदा हो। वो जान चुका था कि रोशनी का राज दिल की पाकीज़गी और दूसरों के लिए नफा बख्श होने में है। यूसुफ की कुर्बानी और गांव वालों की मदद के बाद गांव के हालात बेहतर हो गए। दरिया के बंद ने पानी को रोक लिया था और लोगों की जान और माल महफूज हो चुके थे। गांव वाले यूसुफ की सखावत और कुर्बानी की मिसाल देते नहीं थकते थे, लेकिन यूसुफ के दिल में अभी भी एक बेचैनी थी। रोशनी के राज के बारे में मजीद जानने का तजस्सुस उसे मुसलसल बेचैन कर रहा था। एक रात जब यूसुफ थका हुआ अपने बिस्तर पर लेटा, इसे ख्वाब में रोशनी की कुर्सी दिखाई दी। कुर्सी के करीब वही अंधा राहगीर खड़ा था। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यूसुफ, तुमने अपनी कुर्बानी और नेक नीति से रोशनी के राज को साबित कर दिया है। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, लेकिन यह रोशनी का राज है क्या? अंधे राहगीर ने जवाब दिया, रोशनी का राज यह है कि तुम अपने दिल को हर किस्म की नफरत, लालच और हसद से पाक रखो और अपनी जिंदगी दूसरों के फायदे के लिए गुजारो। रोशनी वो सुकून है जो दूसरों की मदद करने से तुम्हें मिलती है। यूसुफ की आंख खिली तो इसका दिल सुकून से भर गया था। वो समझ चुका था कि रोशनी कोई मादी शय नहीं, बल्कि एक रूहानी कैफियत है जो सिर्फ कुर्बानी, मोहब्बत और खिदमत के जरिए हासिल की जा सकती है। अगले दिन यूसुफ ने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी खुशी नहीं, बल्कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना है। यूसुफ की बातों ने गांव वालों के दिलों पर गहरा असर डाला। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने गांव को एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां हर शख्स दूसरे की मदद करेगा। जल्द ही गांव मोहब्बत और इत्तेहाद की मिसाल बन गया। यूसुफ का नाम बगदाद भर में मशहूर हो गया और लोग उसे रोशनी का कासिद कहने लगे। वो जान चुका था कि रोशनी के राज ने न सिर्फ इसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को एक नया रास्ता दिखाया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हकीकी रोशनी हमारे अंदर है और उसका हुसूल दूसरों की मदद और मोहब्बत से ही मुमकिन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मजीद दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहे। आपकी हिमायत हमारे लिए बहुत अहम है।